नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। जुलाई में उच्च माध्यमिक परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ प्रदर्शन। उच्च माध्यमिक की 3 शेष परीक्षाएं जुलाई में आयोजित करने का सरकार ने दिया निर्देश। राज्य सरकार का शिक्षा विभाग द्वारा जुलाई महीने में उच्च माध्यमिक की शेष परीक्षा आयोजित किए जाने का निर्देश का छात्र समाज ने विरोध शुरू कर दिया है। कोरोना महामारी में जुलाई महीने में उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं आयोजित करने के सरकार के ऐलान के खिलाफ शुक्रवार को सिलीगुड़ी के बागा जतीन पार्क के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इन परीक्षाओं को वर्तमान में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप का हवाला देते हुए फिलहाल इसे स्थगित कर हालात सामान्य होने के बाद परीक्षाएं लेने की मांग की गई। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने उच्च माध्यमिक की 3 शेष परीक्षाएं 2, 6 और 8 जुलाई को आयोजित करने का ऐलान किया है। আজকে এখানে একত্রিত হয়েছি একটাই কারণে যে আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে উচ্চ মাধ্যমিকের যে 3টে পরীক্ষা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল সেই 3টে পরীক্ষা পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা পর্ষদ এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তারা আগামী 2রা জুলাই, 6ই জুলাই এবং 8ই জুলাই এই 3টে দিন তারা ধার্য করেছে এই পরীক্ষাগুলো নেওয়ার জন্য। তো প্রথম দিকে আমরা এই মতামতের সঙ্গে সহমতি ছিলাম, কিন্তু আপনারা একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে প্রতিদিন কিন্তু আমাদের ভারতে করোনার সংক্রমণ প্রতিদিন বেড়েই যাচ্ছে। এবং যদি আমরা ভারত কেন, আমরা যদি শুধুমাত্র শিলিগুড়ির কথাই বলি তাহলে গত 15 দিনেও আমরা সেই রকম সংক্রমণ পাইনি, যেটা গত 15 দিন ধরে প্রায় প্রতিদিনই 14, 15, 20 জন করে আক্রান্ত হচ্ছেন। এবার সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমরা চাইছি যে আগামী যে 2, 6, 8 এই 3টে দিনের পরীক্ষা স্থগিত থাক আপাতত, পরিস্থিতিটা একটু স্বাভাবিক হোক, তারপরে আমরা এই পরীক্ষাগুলো দেব। এর মানে কিন্তু এটা না যে আমরা কখনো পরীক্ষা দিতে চাইছি না বা আমরা পরীক্ষার বিরুদ্ধে। আমরা অবশ্যই চাই পরীক্ষা দিতে এবং পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে, কিন্তু আমরা চাইছি কিছুদিন পর পরীক্ষাটা হোক, করোনা পরিস্থিতিটা একটু স্বাভাবিক হোক। मालदा में मुसीबत की बारिश, घरों में घुसा पानी, जल जमाव से परेशान लोग। नगरपालिका प्रशासन पर जताई नाराजगी, जल्द समाधान नहीं होने पर जोरदार आंदोलन की चेतावनी। लगातार अविरल वर्षा से ओल्ड मालदा नगरपालिका की 17 नंबर वार्ड का बच्चा कॉलोनी इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। भारी बारिश के कारण इलाके में कई स्थानों में घुटने भर पानी है तो कहीं कमर तक पानी जम गया है। इलाके के लगभग सभी घरों में बरसात का पानी घुस गया है, जिससे लोग परेशान दिख रहे हैं। जल जमाव के कारण कीड़े मकोड़े का उत्पात बढ़ता जा रहा है। इलाके में जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर शुक्रवार सुबह से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों ने इसके लिए नगरपालिका के उदासीन रवैये को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी ओर ओल्ड मालदा नगरपालिका के प्रशासक कार्तिक पाल ने बताया कि इलाके में जल जमाव की समस्या के बारे में उन्हें खबर मिली। उन्होंने कहा कि इलाके में पंप लगाने की पहल शुरू कर दी गई है। साथ ही इलाके में एक हाइड्रेन बनाने का काम शुरू किया गया था। हाइड्रेन बनाने का कार्य 80% खत्म हो चुकी है, लेकिन लॉकडाउन के कारण श्रमिकों के अभाव में यह काम आगे नहीं बढ़ पाया है। বছর থেকে আমরা এই অবস্থায় জলমগ্ন হয়ে আছে আমাদের এই পাড়াটা। আমরা ঘর থেকে বেরোতে পারি না। না, কি অবস্থা! আর কি সাপ, ব্যাঙ, পোকা পাকড়, তারপর জল সবসময় জমে থাকে, আমাদের ডেঙ্গুর ভয়। কতদিন থেকে এরকম? এই 5 বছর থেকে এরকম হয়ে আছে। 5 বছর, হ্যাঁ। 5 বছর থেকে আমরা এখন ডেঙ্গুর ভয়। কেউ এখানে তদন্ত আসে, কারো পদ নাই এখন, কেউ এখন দেখবে না, আমাদের দেখভাল করবে না। নম্বর ওয়ার্ডে তো একটা প্রান্তে একটা জল জমে, এটা বাস্তব ঘটনা, কিন্তু আমরা আগামী প্রস্তুতি নিয়েছি যে এই যে বর্ষাটা আসছে কোনো ওয়ার্ডেই জল যেন না জমে, এবং বিভিন্ন জায়গায় পাম্পিং মেশিনগুলো আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি এবং সেচে সেই জলটা বের করে দেবে, মানুষের যেন কোনো অসুবিধা না হয়। এবং এই ওয়ার্ডের সমস্যার জন্য আমরা একটা পৌরসভা আসার পর আমরা একটা মাস্টার প্ল্যানিং ড্রেন করেছি। সেই ড্রেনটা 80% কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং 20% কাজ বাকি রয়েছে। আগামী দিনে এই লকডাউনের জন্য একটু সমস্যা রয়েছে, আগামী দিনে লকডাউন হতে ওই 20% কাজও আমাদের শেষ হয়ে যাবে। এবং যে জলের যে স্টে করে বিভিন্ন বর্ষায় এবং ওভার বর্ষণের ফলে যে জলটা স্টে করে, আগামী দিনে আমার মনে হয় জলগুলো अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर सपूतों को सिक्किम में भी दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 15 जून की रात को लद्दाख के गलवान घाटी में भारत एवं चीन के सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प में देश ने अपने 20 वीर जवान खोए हैं। उनकी यादों में, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके पराक्रम के लिए सिक्किम के लोगों ने आज वीर सपूतों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। राजधानी गैंगटोक के नागरिक समाज के द्वारा स्थानीय एमजी मार्ग में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित की गई श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आरंभ
क्षेत्र के विधायक YT लेप्चा एवं शहरी विकास एवं आवास मंत्री अरुण उप्रेती ने शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य के राज्यपाल गंगा प्रसाद भी इस कार्यक्रम में शिरकत लिए थे। उन्होंने भी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी और इस बीच पत्रकारों के साथ मुखातिब होते हुए राज्यपाल गंगा प्रसाद ने बताया कि शहीदों की बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगी। अनि आज जुन चाहिँ अब अहिले भर्खरै जुन घटना घटेको छ भारत र चाइनाको बिचमा एउटा हाम्रो सैनिकहरूको आपसमा मुठभेडमा जुन चाहिँ हाम्रो भारतीय सैनिकहरूको जुन चाहिँ उहाँहरूलाई उहाँहरूको देहावसान भएको थियो र यसमा उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नको निम्ति आज हाम्रा माननीय विधायक महोदय श्रीमान YT लेप्चाज्यू अथवा उहाँका समस्त हाम्रो गान्तोकवासीहरूले आज यो एउटा कार्यक्रम आयोजन गर्नुभएको थियो कि श्रद्धाञ्जली भनेर र त्यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा म पनि यहाँकै क्षेत्र विधायक भएकोले गर्दाखेरि र यहाँ उहाँहरूको निमन्त्रणामा आज म यहाँ आएको छु र यहाँ अहिले हामीले उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गऱ्यौँ र यसमा जति पनि उहाँहरूको जति पनि घर परिवार उहाँ जति पनि मृत परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। जुन आपतकालीन त पहिलेदेखि आइरहेको थियो संसारमै, जसले संसारलाई नै आज दुःख दिइरहेको थियो र त्यही देशले आज फेरि यहाँ हाम्रो सिमानामा हाम्रो जवानहरूलाई हाम्रो मिलिटरी अफिसरहरूको ज्यान प्राण लियो र उहाँहरूले आफ्नो देशको लागि उहाँहरूले आफ्नो ज्यान प्राण मतलब दिएको छ है। त्यस कारणले गर्दा यो हाम्रो सिक्किमवासीको तर्फबाट अनि तपाईँको देशकै तर्फबाट अझ उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरौँ भन्ने मन भएर अझ सबैलाई निम्त्याएर सायद मलाई लाग्दैछ यहाँनिर अब मैले दिइसकेको छु लेटर, गभर्नर साहबलाई पनि पठाएको छु र यहाँ मुख्यमन्त्री साहबलाई पनि पठाइदिएको छु। बागडोगरा से शहीद हवलदार विपुल रॉय का पार्थिव शरीर और उनकी पत्नी और बेटी तमन्ना को लेकर पैतृक गांव बिंदीपाड़ा के लिए रवाना हुआ सेना का काफिला। चीनी सेना के साथ सोमवार रात हुई खूनी झड़प में शहीद हुए हवलदार विपुल रॉय का पार्थिव शरीर बागडोगरा से उनके गांव के लिए रवाना हो गया है। शहीद की पत्नी और रुम्पा रॉय और बेटी तमन्ना भी उनके साथ है। लेकिन इस बीच आज एक विवाद भी देखा गया। हसीमारा एयरबेस में आज अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बारला को घुसने नहीं दिया गया क्योंकि अंतिम दर्शन के लिस्ट में प्रशासन की तरफ से उनका नाम नहीं रखा गया था, इसलिए वायुसेना छावनी में उन्हें घुसने नहीं दिया गया। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई। हालांकि यहां से शहीद के शव को सड़क मार्ग से पैतृक गांव ले जाया जा रहा है, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परमिशन তারপরে আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব লেটারও করেছে, মেল করেছে, আমার পিএও মেল করেছে, কিন্তু কোনো রেসপন্স আসেনি। যা হোক কাদেরকে বাদ দিল কাদেরকে বাদ দিল আপনাদের? এখন আমাদেরকে বাদ দিল। মানে কে আছেন কারণ এখানে অন্যরা এখন এই যে ঢুকছে, এই যে এখন গাড়ি ঢুকছে, এখন মোনা সরকার নাকি ওদেরকে এখন ঢুকাতে যেতে পারবে, কিন্তু অ্যাজ এ এমপি ভাবে আমরা ঢুকতে পারবো না। ওই যে এখন চলে গেছে, পিছনে দেখছো সাধারণ একটা নেতা মোনা সরকার, উনি ঢুকতে পারবেন আর আমরা ঢুকতে পারবো না। রাজনীতি হচ্ছে, এখানে রাজনীতি করা উচিত ছিল না। অ্যাজ এ আমরা একটা দেশকে নেতৃত্ব দেয় আর দেশের জন্য উনি বলিদান হয়েছে আর ওনাদের পাশে আমাদের দাঁড়ানো উচিত ছিল, কিন্তু আমাদেরকে দাঁড়াইতে দিচ্ছে না। এখানে রাজনীতি এখন বর্তমান যে সরকার আছে ভালো লাগছে না। এই জায়গাটা সব পরিবার চায় পাশে দাঁড়ানোর জন্য, সবাই চায় পরিবার যে সবাই লোক যদি আসে আমাদেরকে আস্থা দেয়। जिस तरह से वहाँ पर चीनी सैनिक द्वारा मारा गया है, अत्यंत निंदनीय काम है। इसको जितना भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन देश, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो सेना है, इस पर किस तरह से इसका जवाब दिया जाए, क्योंकि हमारा एक गणतंत्र देश है। सर्वदलीय बैठक के माध्यम से ही आने वाले दिन में हम किस तरह का पदक्षेप, किस प्रकार का हम लोग कदम उठाएंगे, या सर सलाह के माध्यम से ही उठाया जाएगा। और दूसरी बात, जहाँ पर 20 सैनिक शहीद हुए, उसमें से एक अलीपुरद्वार का भी एक जवान है। बहुत ही दुख की बात है, जो परिवार ने अपना बेटा खोया है, निश्चय ये दुख की बात है। साथ ही साथ
ये मेरे ख्याल से परिवार के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि उनका बेटा ऐसा ही नहीं गया क्योंकि वह देश की रक्षा के हेतु गया, इसलिए उनका नाम आने वाला समय में इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। और जहाँ तक अंदर जाने की बात है तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आने के बाद पता चला कि जितने भी विरोधी एमएलए एमपी हैं उनका नाम डीएम का तरफ से नहीं है। विरोधी बोला जाए तो यहाँ पर बीजेपी के जो एमएलए एमपी हैं उनका नाम अंदर जो एयरफोर्स के कर्नल है, जो ऑफिसर, उनके पास पहुँचा नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच के जलपाईगुड़ी में अगले सप्ताह से शुरू होने जा रहा है सुनवाई। जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के पब्लिक प्रोसिक्यूटर अदिति शंकर चक्रवर्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन वर्चुअल कोर्ट बैठेगा। उन्होंने कहा कि जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच अंतिम सुनवाई 13 मार्च को हुई थी और अभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ऑनलाइन सुनवाई का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि अभी सिर्फ क्रिमिनल केस की सुनवाई होगी, अन्य मामलों की सुनवाई नहीं होगी। उन्होंने यह भी बताया कि जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में ऑनलाइन वर्चुअल सुनवाई के लिए सभी व्यवस्था की जा रही है। দীর্ঘদিন এই কোভিড-19 জন্য সিচুয়েশনের জন্য আমাদের হাইকোর্ট, প্রিন্সিপাল বেঞ্চ এবং আমাদের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ বন্ধ ছিল, ফাইলিং বন্ধ ছিল এবং কোর্টের যে দৈনন্দিন কাজকর্ম সেটাও বন্ধ ছিল। তবে আর্জেন্ট যেগুলো ভেরি আর্জেন্ট ম্যাটার ওগুলো প্রিন্সিপাল বেঞ্চে নেওয়া হচ্ছিল। তো লাস্ট উইকে আমাদের সঙ্গে হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষের এবং জাস্টিসদের মিটিং হয়, তাদের ডিসিশন হয় যে বেল এবং অ্যান্টি বেল, শুধুমাত্র ক্রিমিনাল সেকশনের বেল এবং অ্যান্টি বেল ওটা করা যেতে পারে, তবে ভার্চুয়াল কোর্ট। তো এই ব্যাপারে আমরা আমাদের হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষকে জানাই এবং তারা ওটা স্যাংশন করে এবং তার বেসিসে আমরা হয়তো নেক্সট উইক থেকে আমরা ভার্চুয়াল কোর্ট চালু করব। আমাদের যে প্রিপারেশন নেওয়ার সেগুলো মোটামুটি এখন অন্তিম পর্যায়ে। আশা করছি আমরা नेक्स्ट वीक থেকে আমরা ভার্চুয়াল কোর্ট চালু করতে পারব। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। व्यवसायियों ने चाइनीज सामानों को जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। हाल ही में लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के हमले में भारतीय सेना के 20 जवानों को शहीद होने की घटना के खिलाफ शुक्रवार को बागडोगरा एयरपोर्ट मार्केट के व्यवसायियों ने चाइनीज सामानों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इन व्यवसायियों ने चीन की इस हरकत की निंदा करते हुए भविष्य में चीन के सामान नहीं बेचने की बात कही। मार्केट के व्यवसायी ने कहा कि चीन के सैनिकों द्वारा भारतीय सेना पर हमला किए जाने की भर्त्सना करते हुए लोगों को चीन के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले दिनों में चीनी उत्पाद का बहिष्कार करने की लोगों से अपील की। যেহেতু এটা সবাই মোটামুটি সবাই জানে যে এটা একটা চাইনিজ মার্কেটের মতন এয়ারপোর্ট মোড়টা বাগডোগরা, যেহেতু একটা 15 তারিখে গত 15 তারিখে যে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশবাসীর মধ্যে একটা উৎসাহ জেগে এসেছে যে চায়নাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। সেই শিক্ষা দেওয়ার আমরা তো লড়াই করতে পারবো না। আমাদের কি, যেহেতু এখানে আমরা সবাই ব্যবসা করি, সেই ব্যবসা হিসেবে আমরা কি ওকে কাবু করতে পারি, সেই হিসেবে আমরা যেহেতু প্রত্যেক দোকানদার ওর কিছু কিছু সামগ্রী আমরা বিক্রি বাটা করি, সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমরা এখানে সবাই মিলে একত্রিত হয়ে চাইনিজ জিনিসকে বর্জন করার জন্য আজকে আমরা সবাই শপথ নিয়েছি
যে ওদের জিনিসটা বর্জন করে আমরা স্বদেশি জিনিস। আমরা আজকে যে প্রোগ্রামটা করলাম এটা চাইনিজ আইটেমটাকে বহিষ্কার করলাম। আমরা চায়নার সাথে সমস্ত লিঙ্ক বন্ধ রাখতে চাই, কোনো রকম কানেকশন রাখতে চাই না আমরা। আর পুরো আমাদের ভারতবর্ষের সমস্ত লোকের কাছে একটা আবেদন যে এই যে চাইনিজ এই টিকটক যেভাবে ইউজ করে ভিডিওতে যেসব নটাঙ্কি ওগুলো না করে নর্মাল ভিডিও করুক, কিন্তু এই টিকটকটা যেন ইউজ না করে, চাইনিজের সাথে কোনো রকম যেন কোনো জিনিসের সাথে কোনো নেটের সাথে যেন সম্পর্ক না রাখে, কোনো আইটেমের সাথে যেন সম্পর্ক না রাখে, যেটা আমরা আজকে করলাম। আর আগামীতে আমরা চাই যে ইন্ডিয়াতেও সরকার যেন একটা বিকল্প চিন্তা করে, যেন আমাদের ইন্ডিয়ান আইটেম ইন্ডিয়ান টেকনোলজি দিয়ে যেন চাইনিজ আইটেমগুলো তৈরি করতে পারি আমরা নিজেরাই, আমরা যেন কোনো নির্ভরশীল না হতে হয় চায়নার উপর। কিছুক্ষণ আগে চাইনিজ আইটেম যা ছিল আমাদের মার্কেটের তরফ থেকে সবাই মিলে জ্বালায় দিলাম, আর আমরা মানে কসম খাইছি যে আমরা আর এখন থেকে চাইনিজ আইটেম বিক্রি করব না, ইন্ডিয়ান আইটেমে বিক্রি করব। আর আমাদের এর থেকে আমরা সহানুভূতি দিব আমাদের আর্মি, ইন্ডিয়ান আর্মিদের জন্য। আর পাবলিকের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, তারাও যাতে চাইনিজ আইটেম কেনা বন্ধ করে দেয়, ইন্ডিয়ান আইটেমের প্রতি আগ্রহ দেখায়। থ্যাংক ইউ। প্রথম কথা, আমি তো কোনোদিনও এখনও অবধি টিকটক কী জিনিস কোনোদিনও ইউজ করি নাই, ডাউনলোডও করি নাই। আর যারা করে এই ছেলে মানুষই তোমরা ছাড়ো, ভাই বোন সবাইকে বলবো, টিকটক এগুলো চাইনিজ অ্যাপ্লিকেশন, এগুলো বাদ দিয়ে ইন্ডিয়ান অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করো। আর এই সব নাটক টিকটকে যেগুলো মানে সবাই করে, এখন তো ফিল্ম অ্যাক্টররাও করে, এইসব জিনিস একদম বন্ধ করে দাও। আর না হলে আমাদের কাছ থেকে এই জিনিসটা খুব তোমরা বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া পাবে। চাইনিজ আইটেম আমরা আগে অনেক বিক্রি করতাম, তো চাইনিজ আইটেম কাস্টমারকে দিলে বদনাম হয় এবং চাইনিজ আইটেমে আপনার লংজিভিটি নাই, এই জন্য চাইনিজ আইটেম ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমরা কিছু জাপানিজ মাল রাখি, ইন্ডিয়ান মাল রাখি, হ্যাঁ, থাইল্যান্ডের মাল রাখি, এই সমস্ত মাল রেখে আমরা ছোটো মোটো দোকান চালাচ্ছি, রুটি রোজগার করছি। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আর আমরা চাইনিজ আইটেম বহিষ্কার করলাম এই কারণেই যে আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মির ওপরে চায়নারা অনেক হামলা করছে, বিভিন্ন কারণে আমরা। उत्तर दिनाजपुर लौटे प्रवासी श्रमिक काम के अभाव में फिर से लौट रहे हैं औद्योगिक नगरों में। कोरोना वायरस के कारण देश में लागू किए गए लॉकडाउन के कारण काफी संख्या में प्रवासी श्रमिक देश के अन्य हिस्सों के साथ उत्तर दिनाजपुर अपने गृह क्षेत्र भी पहुंचे हैं। काफी श्रमिक रुपए देकर तो कुछ पैदल चलकर श्रमिक अपने गांव पहुंचे हैं, कोई श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपने क्षेत्र पहुंचे हैं। लेकिन अब इन श्रमिकों को अपने जिले में रोजगार नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि उत्तर दिनाजपुर के विभिन्न गांवों और शहरों में लौटे श्रमिक फिर से पंजाब, हरियाणा, मुंबई, दिल्ली, गुजरात आदि जगहों में जाने लगे हैं एवं वे मजबूर हो गए हैं। इन प्रवासी श्रमिकों का कहना है कि अगर वापस नहीं लौटे तो क्या खाएंगे, क्योंकि उनके गृह जिले में उन लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे में भूखे मरने की नौबत आ गई है। मजबूरी में उन्हें फिर से दूसरे औद्योगिक शहरों की तरफ रवाना होना पड़ रहा है ताकि किसी भी तरीके से अपने परिवार का পালন পোষণ कर सके। রাজমিস্ত্রির কাজ করি, 6-7 বছর হয়ে গেল। বাড়ি আসলাম লকডাউনের আগে, এখানে কাজ কাম নাই, কি করব? আতঙ্ক থাক, কিন্তু পেটটা তো আর মানবে না, এখানে তো কাজ কাম নাই, কি করব? তাই আবার ফিরে যাচ্ছি, 12-13 জন যাচ্ছি। আমরা দিল্লিতে কাজ করি, প্লাস্টার কাজে যাই, কাজ পাচ্ছি না, কোনো খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা পাচ্ছি না, তাই আমরা 4-5 জন যাচ্ছি। না হতে পারে না, 4-5 জন যাচ্ছি। ভয় তো সবারই জীবনে আছে, কারণ আমাদের তো খাওয়ার জন্য রুজি রোজগার কিছু জোগাড় করতে হবে, তার জন্য আমাদেরকে যেতে হচ্ছে। কোনো কমপ্লেন বা কাজ চেয়েছে আমাদের কাছে, কোনো আবেদনও করেনি কিন্তু। আর যারা আবেদন করেছিল পরিযায়ী শ্রমিক, তাদেরকে কাজ দেওয়া হয়েছে। কোদগ্রাম যে সংসদটা আছে আমাদের, কোদগ্রাম সংসদ, সেখানে তারা কাজ করছে। এবং যারা কাজ চেয়েছে তাদেরকে আমরা কাজ দিয়েছি। কাজ না চাইলে তো আমরা দিতে পারবো না, কাজ চাইতে হবে, আবেদন করতে হবে 4-এর ক, তাহলে কাজ পাবে। এবং চলে গেছে এখান থেকে, হ্যাঁ, ভিন রাজ্যে, এরকম কোনো খবর আমাদের কাছে অন্তত নেই। অবশ্যই 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 আমাদের কাছে যদি, আপনাদের কাছে যদি কিছু থাকে, হ্যাঁ, কারা গেছে এরকম যদি আপনারা দিতে পারেন লিস্ট, আমরা অবশ্যই যাব। পঞ্চায়েতের তরফ থেকে আমরা যাব, গিয়ে বোঝাবো যে কেন যাচ্ছে তারা বাইরে। আমাদের হাতে প্রচুর কাজ আছে, তো আমরা কাজের জন্য আমরা লোক চাইছি। আমি আপনাদের মাধ্যমে সবার কাছে আবেদন রাখছি যে যারা কাজ পাচ্ছেন না বলে দাবি করছেন, তারা আসুন আমাদের পঞ্চায়েতে, আবেদন করুন, হ্যাঁ, আইন মেনে আমরা তাদেরকে অবশ্যই কাজ দেব। सिलीगुड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड अस्पताल की संख्या बढ़ाने की मांग की। दिन प्रतिदिन
बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या के मद्देनजर कोविड अस्पताल की संख्या बढ़ाने समेत चिकित्सा व्यवस्था में सुधार लाने की मांग को लेकर सिलीगुड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से शुक्रवार को एक रैली निकाली गई। आज संगठन की ओर से सिलीगुड़ी हॉस्पिटल मोड़ स्थित इन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। सिलीगुड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने राज्य सरकार से सिलीगुड़ी में कोविड अस्पताल की संख्या बढ़ाने, जिन निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है उसे तत्काल सरकार द्वारा अधिकृत करने समेत सिलीगुड़ी में क्वारंटाइन सेंटर की संख्या बढ़ाई जाने की मांग भी की। सरकार তাদের খাবারের দায়িত্ব নিচ্ছেন না, সেখানে কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে না। বিভিন্ন জায়গায় মানুষকে বোঝানোর জন্য সরকারি যে প্রচেষ্টা থাকা উচিত সেটা না থাকার জন্য যেটা হচ্ছে যে পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায়, গ্রামে গ্রামে, চা বাগানে মানুষ এত আতঙ্কিত হচ্ছেন যে তাদের বাড়ির লোকেরাও যদি বাইরে থেকে আসেন তারা আশ্রয় মিলছে না। তো সরকারকে যে উদ্যোগগুলো নেওয়া উচিত ছিল মানুষকে বোঝানোর, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়া, এবং সেক্ষেত্রে আমরা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে সরাসরি কয়েকটা প্রস্তাব রেখেছিলাম। একটা বলেছিলাম যে এই প্রচারের মধ্যে আমরা যারা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছেন তারা এতে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী। আমরা আরেকটা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে প্রত্যেকটা শিলিগুড়ি শহর যদি ধরি সেখানে প্রত্যেকটা যে ওয়ার্ড আছে এই 47টি ওয়ার্ডে আলাদা আলাদা করে এক একটি করে ভলান্টিয়ার্স, কমিউনিটি ভলান্টিয়ার্স টিম তৈরি করা হোক। সেখানে যারা এর মধ্যমণি হিসেবে, কনভিনার হিসেবে, সেখানে যারা নির্বাচিত কাউন্সিলর্স আছেন তাদের মাঝখানে রেখে পাড়ার যাদের কথা মানুষ শোনে তাদের সামনে রেখে একটা করে তাদের কাজ হবে। প্রতিদিন তারা বিভিন্ন বাড়িতে যাবেন, তার মধ্যে ইয়াং টিম মেম্বার্স থাকবেন, তারা ভাগ করে নেবেন কোন কোন বাড়িগুলো তাদের মধ্যে পড়ছে। এইভাবে যদি যাওয়া হয় তাহলে এখানে খোঁজ খবরটা পাওয়া যেত। এবং এই যে অমানবিক একটা প্রতিক্রিয়া আমরা দেখছি যে সমস্ত মানুষ তাদেরকে ঘিরে ধরছেন, তাদেরকে বলছেন না আমাদের পাড়ায় থাকতে দেবো না, নিজের বাড়িতে থাকতে দেবো না, এইটা কিন্তু আমরা অনেকটা পরিমাণে কমিয়ে আনতে পারতাম, মানুষকে বোঝাতে পারতাম, এবং তাদের যে পরিবারের সদস্য তারা কি করে হোম কোয়ারেंटाइने থাকবে। सिलीगुड़ी के खालपाड़ा में 20 लाख रुपयों की चोरी। खालपाड़ा के एसपी मुखर्जी रोड संलग्न एक घर में गुरुवार देर रात को 20 लाख रुपए की चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शुक्रवार को घटना के प्रकाश में आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इस घटना के बाद आज खालपाड़ा आउटपोस्ट के पुलिस मामले की जांच के लिए उक्त घर में पहुंची। पुलिस ने परिवार वालों के संबंध में बातचीत की। परिवार वालों की ओर से घटना को लेकर पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस पूरी घटना की जाँच शुरू कर दी है। दार्जिलिंग क्षेत्र के लगभग 20 होटल में कार्यरत कर्मचारियों को लेकर आज गोरखा एकता कर्मचारी संगठन नामक एक संगठन गठित किया गया है। इस विषय में जानकारी संगठन के अध्यक्ष हरीश भारती ने दी है। उन्होंने बताया कि यह संगठन पूर्ण रूप से एक गैर राजनीतिक संगठन होगा और इसमें 12 सदस्यों को चयन किया गया है जो संगठन के विभिन्न कार्यों को करेंगे। उन्होंने बताया कि उक्त संगठन कर्मचारियों के हितों के लिए हमेशा कार्य करेगी। आज चाहिँ हामीले एउटा कमिटी गठन, त्यो कमिटी गठन चाहिँ कस्तो कमिटी गठन भन्दाखेरि नन पोलिटिकली, कसैको पोलिटिकल यसमा हात हुँदैन, त्यो गठन हामीले आज गरेको छौँ। र गर्दाखेरि आज हामीले हाम्रो यो अहिले जुन चाहिँ भर्खर यो कमिटी जोइनिङमा चाहिँ हाम्रो 15-20 वटा होटल जोडिएको छ। 15-20 वटा होटलको सबैको नाम डिटेल्स हाम्रोमा अहिले आइपुगेको छ। र प्लस आज हामीले यो कमिटीको सेक्रेटरी, प्रेसिडेन्ट, भाइस सेक्रेटरी, भाइस प्रेसिडेन्ट हामीले 4 जना, अन्त 2 जना बडी, 2 जना एक्जिक्युटिभ बडी हामीले त्यो तय गरेको छौँ, मतलब चयन गरेको छौँ। र फर्दर अब कस्तो प्रकारको यो एसोसिएसनले कस्तो प्रकारको काम गर्नुपर्ने र नन पोलिटिकली हामीले कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने, हामीले यो एउटा इम्पोर्टेन्ट एउटा चाहिँ म भनिहाल्छु, यसमा कुनै पनि पोलिटिकली हात छैन। प्लस अर्को कुरा के हो भने अब आज हाम्रोमा 15-20 वटा होटललाई यो परिरहेछ भने भोलिको दिनमा अरू होटलहरूलाई पनि परिराखेको हुन्छ। यो कुरालाई हामीले यो कमिटी चाहिँ कस्तो कमिटी हो भन्दाखेरि मालिक पक्षलाई, मालिकलाई पनि जोर जबरजस्ती धम्की दिएर त्यो गर्ने पक्षमा होइन, हामी मालिक पक्षमा पनि छौँ। कमिटीले यो स्टाफ मतलब कर्मचारीलाई पनि त्यो गर्नेछ। अन्त कमिटीको आज नाम छ गोर्खा एकता वर्कर्स एसोसिएसन छ। र अब हाम्रोमा त्यही अघि भनिहालेँ मैले 15-20 वटा होटल यसमा जोइन भएको छ अहिले। अन्त म चाहिँ यहीँबाट यो प्रेस मार्फत जति पनि नआउनु भएको, जति पनि सुन्नु भएको थिएन, आज प्रेस मार्फत हामीले कन्ट्याक्ट नम्बरहरू तपाईँहरूलाई दिँदैछौँ। नआउने जति पनि होटल एसोसिएसन मतलब यसले हामीलाई होटललाई मात्रै नहेरेर भोलिको दिनमा हाम्रो रेस्टुरेन्ट छ,
अरू अरू प्राइभेट सेक्टरहरू छ, यसलाई पनि हामीले पछि जोइन गरेर जान्छौँ। त्यो पछि पछि हुँदै जान्छ र हामी जो नआउने अहिले जति पनि जानकारी नभएकोहरूलाई चाहिँ हामीले यो कन्ट्याक्ट नम्बर, प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी कन्ट्याक्ट नम्बर दिन्छौँ। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।